वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एम्पियर्स लॉ और यही एम्पियर सर्किट लॉ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया, अगर एक वायर है हमारे पास, इफ द करंट इज पास्ड थ्रू दिस वायर, व्हाट हैपेंस, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड दिस वायर। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट्स around this conductor so long as there is current in the wire. ठीक है, as soon as the current is switched off, what will happen? The magnetic field disappears. ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, एक वायर है, suppose I with the current flowing through it, what will happen? Magnetic field generates around this conductor. अगर इस magnetic field में एक point ले लेंगे, point P, suppose we would like to measure the magnetic field induction at point P due to this conductor carrying current. ठीक है, what we do, we use a law which is called Biot-Savart's law. तो Biot-Savart's law हम यूज करते हैं to measure the magnetic field induction at point P due to the conductor carrying current. ठीक है, okay. अब not only Biot-Savart's law, there is one more law जिसको हम कहते हैं Ampere's law. This Ampere's law, Ampere's circuitry law, can also be used to calculate the magnetic field induction at a point due to a conductor carrying current. ठीक है, तो इस पॉइंट पे या किसी और पॉइंट पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटरी लॉ, नॉट ओनली ड्यू टू सिंगल वायर बट ड्यू टू नंबर ऑफ वायर्स। इज दिस क्लियर टू यू? और वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से हम एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर करते हैं। सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ है क्या वो हम बता देंगे, यहाँ पे वो समझने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट First we will, as you know that, we will compare it with the law जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं Gauss's law। तो Gauss's law में होता क्या है, there are number of charges or continuous charge distribution। Suppose यहाँ पे हम net charge दिखाएंगे, suppose it is considered at a single point Q। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, what we do, we draw a surface of any shape and size around this charge. It may be curved or it may be symmetrical। ठीक है ना, या symmetrical भी हो सकते हैं, of any shape and size, doesn't matter। ये spherical भी हो सकते हैं, cylindrical हो सकते हैं, किसी भी shape and size की, ये जरूरी नहीं कि symmetrical shape हो। ठीक है, अब ये जो चार्ज है, it can be anywhere within this surface। इस surface को हम कहते हैं Gaussian surface। Gaussian surface, this is called Gaussian surface। ठीक है, so ये जो Gaussian surface है, it is an hypothetical surface, it is an imaginary surface and it is a closed surface। There is condition, there is two things which are to be kept in mind for the surface। Number one, it is closed surface। Number two, it is an imaginary surface। हम imagine करते हैं एक surface के इर्द गिर्द हम ड्रा करते हैं, imagine करते हैं एक surface है, closed surface। ठीक है, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, we divide this entire surface into large number of elements, and then we consider one such element, very small element here। ये बहुत छोटा होता है, अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया S इसका होगा, इसका एरिया यहाँ पे होगा ds, very small, 10⁻�0। ठीक है ना, into infinite number of elements, we will divide the surface into infinite number of elements। तो जो एलिमेंट होगा छोटा सा 10⁻, जिसका साइज होगा 10⁻�0, जिसका एरिया होगा वेरी वेरी स्मॉल 10⁻�0, तो वो सरफेस हमें लगेगा ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस। ठीक है, एज यू नो दैट, जब हम Gauss's लॉ यूज करते हैं, जब हम एरियाज लेते हैं, तो एरिया कैन बी ट्रीटेड एज एन एरिया वेक्टर इन दिस केस। तो ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया, इसको भी हम ट्रीट करेंगे एज एन एरिया वेक्टर, एंड द एरिया वेक्टर ऑफ एन एरिया इज along the normal drawn on the surface, जैसे कि हमने पहले Gauss के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया है, एरिया वेक्टर किसको कहते हैं। तो दिस एरिया कैन बी ट्रीटेड एज एन एरिया वेक्टर। ठीक है ना, तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, along the normal to this surface। इस पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ से नॉर्मल होगा, तो यही रिप्रेजेंट करेगा एरिया वेक्टर। ओके, अब इस पॉइंट पे, सपोज दिस पॉइंट P, जहां पे हमने ये छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, तो इस पॉइंट P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है ना, उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, सपोज इस डायरेक्शन में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इट मेक्स सम एंगल हियर विद दिस एरिया वेक्टर। ठीक है ना,
then we will take the dot product of electric field intensity and the area vector. इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. This dot product between the electric field intensity and the area vector gives what? Gives the flux which is passing through this small area element. इस छोटे से area element में कितना flux निकलता है, ठीक है ना? वो किसके बराबर होता है? E dot ds. Is this clear to you? अब हम चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स जो पास हो जाए थ्रू द एंटायर क्लोज सरफेस, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंसीडर ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने इनको बना दिए हैं, इनको सरफेस को डिवाइड कर दिया. वी हैव टू कंसीडर ऑल सच स्मॉल एरिया एलिमेंट्स. हर एक एलिमेंट पे हमें क्या देखना है? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड डी एस. इज दिस क्लियर? फिर उनको सम अप करना है. As the element is area element is very very small, tends to 0, and there are because there are infinite number of area elements, ठीक है? Therefore, इसलिए जो जब हम sum up करेंगे उसके बदले हम इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो integration of this over the entire closed surface will give the total flux crossing this closed surface, ठीक है? And according to Gauss's theorem, Gauss's law, it always comes out to be net charge within the Gaussian surface divided by the epsilon naught, absolute permittivity of the free space, if the charge is held where? In the free space. Is this clear? This is what we call Gauss's theorem. अब यहाँ पे हमें एम्पियर्स लॉ में यहाँ पे सरफेस नहीं, यहाँ पे हमने लिया था स्टैटिक चार्ज, मगर यहाँ पे स्टैटिक चार्ज नहीं है क्योंकि स्टैटिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है. अब जब ये मोशन में होगा तभी यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. तो हम यहाँ पे ले लेंगे मूविंग चार्ज. चार्ज कहाँ पे मूव कर रहा है? इन ए कंडक्टर. तो हम यहाँ पे कंडक्टर कंसिडर करेंगे. इट इज यहाँ पे मैंने एक चार्ज दिखा दिया. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं. मान लीजिए माइनस क्यू एक और चार्ज है यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरा चार्ज है प्लस क्यू. इसी तरह से नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर. तो यहाँ पे भी एक ही नहीं जरूरी है कि एक ही कंडक्टर हो. इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो सकते हैं. एक कंडक्टर, 2, 3, 4. यहाँ पे मैं ले लूंगा 3 कंडक्टर्स, ठीक है? दिस अनदर कंडक्टर, दिस अनदर कंडक्टर. इसमें करंट जा रही है डाउनवर्ड, सपोज I1. इसमें करंट जा रही है अपवर्ड, सपोज I2. इसमें करंट जा रही है नीचे I3. 3 कंडक्टर्स आर देयर. ओके, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर. अब इनकी वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. इसके अराउंड जब करंट पास हो जाएगी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है? तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू एम्पियर, यहाँ पे गॉसेस लॉ के हिसाब से हमने यहाँ पे क्लोज सरफेस ड्रा किया था. अब यहाँ पे क्लोज सरफेस ड्रा नहीं करना है. हमें क्या ड्रा करना है? एक पाथ, एक लूप लेना है, ठीक है? ऑफ एनी शेप एंड साइज, ऑफ एनी शेप एंड size, of any shape and size. This is the loop or path or a curve, plane curve. It should be plane, ठीक है ना? It should be plane, closed and plane curve. यहाँ पे this is the necessary condition for the curve, closed and closed plane curve, closed plane curve, ठीक है? ये क्लोज प्लेन कर्व हमने किसके अराउंड ड्रा किया है? मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसके अराउंड हमने एक पाथ ड्रा किया, एक कर्व ड्रा किया. इट इज एन इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी कर्व. ये हम खुद ड्रा करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है ना? ये किसी मटेरियल की पाथ नहीं होती है, ठीक है? ये कंडक्टर की पाथ नहीं होती है, ये करंट के लिए पाथ नहीं होती. इट इज एन इमेजिनरी पाथ, ठीक है? मैंने कि ऐसी पाथ है कि इस पाथ को हमें फॉलो करना है. वी हैव टू मेक अ सिंगल ट्रिप अराउंड वंस अराउंड दिस दीज कंडक्टर्स, वंस अराउंड दीज कंडक्टर्स. एक चक्कर लगाना है इसे. फॉर दैट यू कैन सिलेक्ट एनी पाथ ऑफ एनी शेप एंड साइज, ठीक है? ओके, इज दिस क्लियर टू यू? एंड दिस क्लोज प्लेन पाथ इज कॉल्ड एम्पेरियन पाथ. एम्पेरियन पाथ और एम्पेरियन कर्व, दिस कॉल्ड एम्पेरियन पाथ और एम्पेरियन कर्व. इज दिस क्लियर टू यू? जिस तरह से यहाँ पे गॉसियन सरफेस और इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, इसी तरह से यहाँ पे इसको हम एम्पेरियन पाथ और एम्पेरियन कर्व कहते हैं और एम्पेरियन लूप भी कहते हैं इसको. इज दिस क्लियर टू यू? ये पाथ किस लिए है? क्योंकि हमें इसको फॉलो करना है, यहाँ से जाना है वंस अराउंड दीज कंडक्टर्स,
ठीक है, वी हैव टू फॉलो अ पाथ, इट कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, डज नॉट मैटर। अब उसके बाद यहाँ पे हमने गॉसियन थ्योरम में अभी देखा आप लोगों ने कि आपको पहले से पता है, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बिफोर डिवाइड, सिमिलरली वी विल डिवाइड दिस लूप इनटू लार्ज नंबर ऑफ elements, length elements. Before we divide it into a large number of length elements, what we do, we will choose a direction of the path. हम कैसे जाएंगे, जब हम मूव करेंगे along this path, ठीक है, तो हम clockwise जाएंगे या anti clockwise जाएंगे। दिस इज एंटी clockwise sense and this is clockwise sense, ऐसे अगर जाएंगे। Is this clear? तो मान लीजिए हम जाएंगे एंटी क्लॉक सेंस में, तो हम इस पे एरो ड्रा करेंगे। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द पाथ, तो हमें कैसे जाना है, वंस अराउंड दिस कंडक्टर्स टू मेक अ सिंगल ट्रिप, ठीक है। तो वापस अपनी जगह पे आना है, यहां से स्टार्ट किया हमने, वापस यहाँ पे आना है। तो हमने कैसे मूव करना है, हमने किस डायरेक्शन में मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यू कैन मूव लाइक दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डिपेंड्स अपॉन यू। इज दिस क्लियर? ओके। एंड देन आफ्टर दैट, अब ये लूप बन गया ना, तो इस लूप जो पाथ है, इस पाथ को हम डिवाइड करेंगे इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इनफिनिटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स, इसको हम डिवाइड करेंगे छोटे एलिमेंट्स में, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, तो उसमें से इस तरह से हमको डिवाइड करना है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, डैश 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 डैश, infinite number of elements, and consider one such element। यहाँ पे एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, dl, एंड ये जो dl है लेंथ एलिमेंट, इसको हम ले लेंगे एज वेक्टर। देन इसकी डायरेक्शन भी दिखानी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, इट्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व एट दिस पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है, इस पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया dl, करंट दिस लेंथ एलिमेंट, पाथ एलिमेंट, तो इट इज नॉट ए करंट एलिमेंट, इट इज पाथ एलिमेंट। ओके, याद रखना, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही है, करंट सिर्फ थ्रू वायर जा रही है। तो इस पॉइंट पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, पाथ एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन, इसको ट्रीट करना है एज वेक्टर, तो इसको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टेंजेंट drawn on the curve at point P in the direction of path। तो डायरेक्शन ऑफ पाथ कैसे है, इस तरह से, तो इसी डायरेक्शन में हमें टेंजेंट ड्रा करना है, दिस विल बी द टेंजेंट, ठीक है, दिस इज द टेंजेंट। सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, लेंथ एलिमेंट। इज दिस क्लियर? ओके। एंड नाउ ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, यहाँ पे P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। Is this clear? And now यहाँ पे एक एलिमेंट हमने ले लिया, इसकी डायरेक्शन भी हमने स्पेसिफाई कर दी, डिफाइन कर दी, इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे, इसको डायरेक्शन भी रख दी हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पे इन कंडक्टर्स की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज बी, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, दिस इज बी हियर, एंड इनके दरमियान जो एंगल होगा, कुछ ना कुछ होगा, थीटा। This theta may be 0, 90 और any angle, ठीक है ना। ये जो एंगल होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम भी हो सकता है, ऑल पॉइंट्स पे सेम भी हो सकता है, ऑल पॉइंट्स यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट भी हो सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? यानी कि थीटा अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस द एंगल बिटवीन DL and B is constant at each and every point, and in certain other conditions the theta is different at different points, जैसे कि इस केस में theta is different at different points. Is this clear to you? Okay. Forget about that for the time being. Now, we will calculate the scalar product between what? Scalar product between B and DL. Calculate scalar product between B and DL vector. जैसे यहाँ पे हमने स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, यहाँ पे एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो फिर उस एलिमेंट में, एरिया एलिमेंट में हमने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे भी इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड लेंथ एलिमेंट के दरमियान हम स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। इट वुड बी इक्वल टू B डॉट DL। इज दिस क्लियर टू यू?
तो इसी तरह से फिर यही कैलकुलेट करेंगे फॉर द अनदर एलिमेंट, फिर इसके साथ दूसरा एलिमेंट होगा उसके लिए भी यही कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरा एलिमेंट, जितने भी इसमें एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे बी डॉट डी एल क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड लेंथ एलिमेंट एट दैट एलिमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? ये हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना है एज ऑल द एलिमेंट्स आर कंटिन्यूअस, नंबर 1, एंड नंबर 2 the of each element is very very small, tends to 0. Under these conditions, ठीक है ना, the summing up of all the elements B dot dl product, summing up of the product between B and dl for all elements, ठीक है ना, can be represented by integral of B dot dl. Is this clear to you? तो जो summation होगा वो convert होगा integral में, because all the elements are continuous and the size of each element is very very small, tends to 0. Under these conditions we can integrate it in order to summing up of all the products due to all elements. Is this clear? Okay, so B dot dl over the entire closed loop. यहाँ पे सर्कल ड्रा करेंगे, यहाँ पे भी हमने सर्कल ड्रा कर दिया. This circle represents closed surface, but in this case this circle represents closed path, closed loop. Is this clear to you? Okay, closed curve, ठीक है, because it is the integration of magnetic field induction with respect to length. This is the integration of electric field intensity with respect to surface. This is called surface integral. This is called a line integral. So is this clear to you? So line integral of the magnetic field induction over the entire closed loop according to Ampere's law is equal to, जैसे कि यहाँ पे है Q net charge. इट इज स्टैटिक चार्ज, मगर यहाँ पे भी यही चार्ज है मगर ये मोशन में है, उसकी वजह से करंट बनेगी, तो यहाँ पे आएगी नेट करंट. तो नेट करंट इस तरह से लिखेंगे, अलजेब्रा सम ऑफ करंट्स लिखेंगे आई नेट. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एप्सिलॉन नॉट, मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. यहाँ पे फ्री स्पेस है, these conductors are supposed to be held where in the free space. Therefore यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मैग्नेटिक कांस्टेंट से, मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ठीक है, तो इट इज यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मल्टीपल होगा म्यू नॉट से. Is this clear to you? This is what we call Ampere's law. So what is Ampere's law? Ampere's law is Ampere's law states that the line integral of the magnetic field induction over any closed loop is equal to the absolute permeability times the net current. कौन सी current? It is the current flowing through these wires. ये वायर कहाँ से जा रहे हैं? Through the area bounded by this loop. Is this clear? This is very important here. ठीक है? It is not the conductor outside. ये बाहर की कंडक्टर नहीं. अगर यहाँ पे बाहर की कंडक्टर होगी, मान लीजिए इसमें करंट जा रही है I4, तो वो I4 यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी. It is only those conductors which are bounded by this loop, ठीक है ना, which are passing through the area bounded by this loop. Is this clear to you? So we can say the Ampere's law states that the line integral of the magnetic field induction over a closed loop is equal to the absolute permeability times the net current passed through the area bounded by the closed loop. Is this clear to you? Net current passing through the area bounded by the closed loop. Yeah, we can say the net current flooding through the area bounded by the closed loop. This is what we call Ampere's law. अब यहाँ पे हम दिखाएंगे जो अब हमारे पास Ampere's law है. Now the Ampere's law, अगर एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है, या नंबर ऑफ वायर्स जो मैंने बताया था पहले, एक वायर मान लीजिए एक ही वायर है, ठीक है, तो एम्पेयर्स लॉ क्या कहते हैं, इसके अराउंड एक पाथ ड्रा कीजिए. इज दिस क्लियर टू यू? द पाथ कैन बी सर्कुलर, द पाथ कैन बी रेगुलर, बट प्लेन लूप. जो कर्व हम ड्रा करें क्लोज कर्व होना चाहिए, बट प्लेन, क्लोज प्लेन कर्व, ठीक है ना. इज दिस क्लियर? ऑफ एनी शेप. अब ये जो कंडक्टर है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी एट द सेंटर ऑफ दिस area bounded by, it should pass through the area bounded by the this closed loop, ठीक है ना, इसके सेंटर में से.
It is not necessary. It means that जो Ampere's law, it does not depend upon the position of the conductor within the loop. इसकी क्या पोजिशन है. So is this clear to you? ये यहाँ से भी हो सकती है, इस एंड पे भी ले सकते हैं कंडक्टर, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं. Number one. Number two, it also does not depend upon the shape and size of the closed curve. Closed curve. Is this clear to you? उसकी शेप कैसी होगी उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है. ठीक है ना. तो अब एम्पियर्स लॉ क्या कह रहा है. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अगर एक कंडक्टर या नंबर ऑफ कंडक्टर्स है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है I. ठीक है. तो इसके अराउंड हम एक पाथ सिलेक्ट करेंगे ऑफ एनी शेप एंड साइज. इज दिस क्लियर. छोटी पाथ भी ले सकते हैं, बड़ी पाथ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर. ठीक है. फिर इसकी हम जो पाथ की डायरेक्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना. देन इसको डिवाइड करना है इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देन वी विल कंसीडर वन सच एलिमेंट. ठीक है. ऑफ लेंथ dl, उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, in the direction of the loop. Is this clear to you? In the direction of the curve dl. Is this clear? And यहाँ पे कुछ magnetic field होगा due to this. मान लीजिए this is direction of magnetic field. इनके दरमियान एंगल है थीटा. Then according to Ampere's law, the line integral of the magnetic field induction along over a closed loop or path, closed plane path, is equal to mu naught times the net current. अभी जो नेट करंट मैंने बता दिया, अभी एक करंट भी हो, एक वायर भी हो सकती है. अगर दो करंट से, दो कंडक्टर्स है, मान लीजिए 3 कंडक्टर्स, जैसे अभी मैंने बता दिया इसमें करंट जा रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन I1, इसमें जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2, इसमें जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन I3. इज दिस क्लियर. सपोज 3 कंडक्टर्स आर देयर. तो इसके बदले यहाँ पे लिख सकते हैं हम म्यू नॉट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स. वही है नेट करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स. तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स का मतलब ये है यहाँ पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है. तो साइन कन्वेंशन किस तरह से इस्तेमाल करेंगे फॉर द करंट, क्योंकि करंट, कुछ करंट ऊपर जा रही है, कुछ करंट नीचे जा रही है. फॉर दैट वी विल यूज साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन किसके हिसाब से, सबसे पहले जो ये लूप है जो अभी मैंने बता दिया था, मान लीजिए ये जो पाथ हमने सिलेक्ट की है, suppose this is the path, plain closed path around these conductors. Okay. Okay, this is the path. It can be of any shape and size, doesn't matter, but it has two faces. जो हमने imagine किया, it is an imaginary path. It has two faces, top face and bottom face. ठीक है. इसका एक फेस हम लेते हैं पॉजिटिव, दूसरा फेस लेते हैं नेगेटिव. ठीक है. It has two faces, two sides. One side is taken as positive, second side is taken as negative. तो कैसे हम कौन सा फेस हम पॉजिटिव लेंगे, कौन से हम नेगेटिव लेंगे, कौन सा पॉजिटिव लेंगे, इट इज डिफाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ मैनर सो दैट द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द पाथ. जो डायरेक्शन ऑफ पाथ होगी उसी डायरेक्शन में उनको कर्व करना है. ठीक है. द कर्वेचर इज इन द ऑफ द फिंगर, कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द path, in the direction of the path. Then the stretched thumb gives the direction of what, represents the direction of the positive face. इसका मतलब है जो ऊपर वाला फेस है वो पॉजिटिव फेस होगा. Is this clear to you? In this case it means that जो टॉप फेस है वो होगा पॉजिटिव फेस, पॉजिटिव फेस. अब इसके बराबर जो नीचे वाला फेस है वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव फेस. There are two faces. Is this clear to you? Top face. यानी कि अगर मैं इसके ऊपर से देखूंगा, ऊपर से मैं देख रहा हूं, ऊपर से मैं देख रहा हूं, जब ऊपर से मैं देखूंगा अगर इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज. तो जो ऊपर वाला फेस, जिस फेस पे मैं देख रहा हूं वो फेस होगा पॉजिटिव फेस. तो इसके नीचे वाला फेस होगा फिर नेगेटिव. अगर करंट ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं किसी जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है वो है क्लॉकवाइज, तब ये ऊपर वाला फेस होगा नेगेटिव. इज दिस क्लियर? शाबाश. तो अकॉर्डिंगली हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. द करंट विच इज कमिंग आउट द एरिया, विच इज कमिंग आउट द फेस, पॉजिटिव फेस ऑफ द लूप, जो पॉजिटिव फेस में से आती है करंट, जैसे कि ये करंट ऊपर जा रही है. इज दिस क्लियर टू? ये पॉजिटिव फेस में से आ रही है, बाहर निकल रही है. तो दिस करंट इज टेकन एज
पॉजिटिव करंट अपॉन साइन कन्वेंशन। अब ये जो सेकंड कंडक्टर है ये बाहर आ रही है लूप से, जो एरिया बाउंड बाय द लूप, ये इस एरिया से बाहर आ रही है। कहां से? इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द नेगेटिव फेज, देयरफॉर दिस करंट जो I2 है इज नेगेटिव, यहाँ पे I1 इज पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? इसी तरह से ये कंडक्टर यहां ऊपर की तरफ करंट जा रही है इस कंडक्टर में, इट इज कमिंग आउट, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉजिटिव फेज, देयरफॉर दिस करंट इज टेकन एज is positive. Is this clear to you? This is the sign convention which we use for taking the algebraic sum of currents. Okay? ये यहाँ पे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये 3 कंडक्टर्स है, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I मीन्स, यहाँ पे देखिए I1 इज पॉजिटिव तो I1 पॉजिटिव रखेंगे, फिर I2 इट इज नेगेटिव तो माइनस आएगा I2, I3 इज पॉजिटिव प्लस I3 करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ओके, तो यहाँ पे इसका हमें हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पे हो सकता है I2 ज्यादा हो एज कंपेयर टू I3 एंड I1, सम ऑफ दीज टू I2 इज मोर देन I1 प्लस I3, देन ये नेगेटिव आएगा, पर फिर भी हमें पॉजिटिव ही यहाँ पे इसका वैल्यू लेना है, याद रखना। इज दिस क्लियर? ओके, इसलिए मैंने ये मार्क दिखा दिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर? मैंने खाली पॉजिटिव साइन लेनी है यहाँ पे। दिस इज व्हाट वी कॉल एम्पियर्स लॉ। अभी जो एम्पियर्स लॉ है, यही एम्पियर्स लॉ हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट। जब हम ये यूज करेंगे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट, तो वी हैव टू कीप सर्टेन पॉइंट्स इन माइंड in order to solve this integral. We have to solve this integral. राइट साइड तो हमें पता है, ये तो हम क्या बता सकते हैं जल्दी कितनी नेट करंट होगी थ्रू द क्लोज लूप जो सो कंसिडर्ड। इज दिस क्लियर? बट यहाँ पे जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रल को हम इजी बनाएंगे ताकि हम इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज इट इज एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, but under symmetrical conditions it is highly applicable, ठीक है ना? It is applicable, it is useful to when there are certain symmetrical conditions, ठीक है ना? Is this clear to you? When there are highly symmetrical conditions, certain symmetrical conditions, तब हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे बता दूं आपको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे it can also be written as B DL cos of theta mu naught I net। अब हम जब ये यूज करेंगे फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि एम्पियर्स लॉ बता रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू सिलेक्ट ए व्हाट एम्पियरियन लूप, क्लोज्ड प्लेन कर्व हमने सबसे पहले कंसिडर करना है। अब वो प्लेन जो लूप हम ले लेंगे, क्लोज्ड लूप हम ले लेंगे, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? द शेप इस तरह से होनी चाहिए ताकि उस पे जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन B एंड DL, या वो कैन से जो B होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू द पाथ एट एवरी पॉइंट, या हर एक जगह पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, या B शुड बी पैरेलल टू द पाथ, या ये पाथ पे हर एक जगह पे पैरेलल होना चाहिए, या मिक्सचर ऑफ द टू। मिक्सचर ऑफ द टू मीन्स पाथ के कुछ हिस्से पर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए या कुछ हिस्से पर पैरेलल होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? पाथ इस तरह से सिलेक्ट करनी है ताकि उस पाथ के कुछ हिस्सा पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो, या तो वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो पैरेलल होना चाहिए हर एक जगह पे, अगर पैरेलल भी नहीं है तो कुछ हिस्से पे अगर परपेंडिकुलर होगा, कुछ हिस्से पे पैरेलल होगा, वो भी चलेगा। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, नंबर 1 कंडीशन। सो इट मीन्स दैट, तो अब ये कंडीशन है। अब ये जो एक चीज ये है, तो इट मीन्स दैट जो थीटा होगा, थीटा शुड बी कांस्टेंट, ठीक है ना? तो कांस्टेंट वैल्यूज क्या होनी चाहिए? या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर, ये कंडीशन है।
या 0 डिग्री होना चाहिए हर एक जगह। अगर 0 डिग्री होगा तो ठीक है, तो हम इसको इजीली ये cos 0 यहाँ पे cos 0 बनेगा, तो ये cos 0 बार के बराबर होगा, ये खत्म हो जाएगा इसी के साथ। अब अगर आधे से पर 0 है, आधे पर 90 है, तो आधे के लिए 1 बनेगा, आधे के लिए 0 बनेगा, वो भी चलेगा। इसके लिए तो एक और कंडीशन है अब बी के लिए, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट किस तरह से होगा, या ये नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो यानी अबव जीरो होना चाहिए मगर कांस्टेंट, ठीक है। या ये जीरो होना चाहिए, या जीरो हो सकता है, कांस्टेंट कैन बी जीरो और नॉन जीरो भी हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट है एक जगह तो ठीक है, नॉन जीरो। अगर ये आधे हिस्से पर नॉन जीरो कांस्टेंट, आधे पर जीरो है, तब भी चलेगा। इज दिस क्लियर टू यू? दीज आर द कंडीशंस, these are the highly symmetrical conditions, there are certain symmetrical conditions जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम ये यूज करेंगे। Is this clear to you? Accordingly we have to choose the Amperian loop। इसी के हिसाब से हमें एम्पियरल लूप सिलेक्ट करना है, वो होना चाहिए सिमेट्रिकल लूप। तो उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, सर्कुलर लूप कंसिडर कर सकते हैं, या स्क्वायर लूप कंसिडर कर सकते हैं, या रेक्टेंगल लूप कंसिडर कर सकते हैं। इनमें सिमेट्री है, आमतौर यही लूप हम यूज करते हैं, एम्पियरल लूप, एम्पियरल पाथ और एम्पियरल कर्व, यही सिलेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट। तो इस लूप में इन लूप में क्या होगा, ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट वी कैन यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ एवरीवेयर, किसी भी जगह पे, ठीक है ना, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं, दिस इज जनरल लॉ, बट इट इज यूजफुल अंडर दीज symmetrical conditions, under these symmetrical conditions. Is this clear to you? These are the symmetrical conditions under which the Ampere's law is most useful. Is this clear to you? ये ज्यादा वहीं पे यूज करते हैं। Is this clear to you? Okay, ये मैंने बता दिया। अब हम इसकी applications next वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then